Good morning, my dear students. Students, I welcome you all in the official YouTube channel of Sanskaram Group of Schools. On behalf of Sanskaram Group of Schools, I welcome you all in the amazing online series. Students, this is our lecture number 7. In lecture number 7, we are going to discuss numericals on spherical lenses. That comes under the chapter of light. Students, basically, what do you mean by the term light? Light is our basic phenomenon. What do you mean by the term light? Light is our basic phenomena that provides us the sensation to see our surrounding. Because of light, हमारे आसपास में जो कुछ भी objects available होते हैं, whether it will be a chair, a pen, आप मुझे देख पा रहे हैं because of light. मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ. आपके आसपास जो भी चीजें रखी हैं, आप उन चीजों को देख पा रहे हैं because of light. Alright, students. तो इसी चैप्टर लाइट के अंदर हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. द नेम ऑफ द टॉपिक इज न्यूमेरिकल्स ऑन स्फेरिकल लेंसेज. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. तो चलिए आज का सेशन हम हमारा शुरू करते हैं. बी रेडी विद आवर पेन एंड आवर सेपरेट नोटबुक. ऑलराइट, द मेन कंटेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इज. कंटेंट्स को जानने की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि कोई भी लेक्चर शुरू करने से पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए. स्टूडेंट्स, क्या क्लियर होना चाहिए कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम कवर क्या करने वाले हैं. तो कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ही क्लियर रखिए. चलिए, द कंटेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इज लेंस फार्मूला, सेकंड वन मैग्निफिकेशन, थर्ड वन न्यूमेरिकल्स ऑन कन्वेक्स लेंस एंड द लास्ट टॉपिक न्यूमेरिकल्स ऑन कनकेव लेंस. These four important topic today we are going to cover. और स्टूडेंट्स, हम आपको एक चीज की गारंटी देते हैं, अगर आप एक बार अंत तक इस वीडियो सेशन को देख लेते हैं, लाइफ में कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल आप गलत नहीं करेंगे. इस चीज की गारंटी हम आपको देते हैं. तो स्टूडेंट्स, इसीलिए अंत तक आपको इस वीडियो लेक्चर को देखना है. अगर ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. The first content today we are going to discuss is lens formula. आज हम किसके बारे में जानने वाले हैं? Lens formula. What do you mean by the term lens formula? क्या होता है ये lens formula? Students, it establishes a relationship between three terms. These three terms are U, V and F. Where U stands for the object distance, V stands for the image distance and F stands for the focal length. In all these three distances we should measure from the optical center. I repeat, optical center. What do you mean by the term optical center? क्या होता है ये optical center? Optical center is the central point of a spherical lens. I repeat, optical center is the central point of a spherical lens. Whether it will be of concave lens or whether it will be of convex lens, कोई भी lens नहीं. So the lens formula is 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. And the next term, that is magnification. What do you mean by the term magnification? It is the ratio of height of image to the height of object. Ratio रहता है, divide करता है किसको? Height of image को किसके साथ? Height of object. Students, हमारे पास एक फॉर्मूला और है मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करने का. बाई चांस ये चीजें हमें न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है तो क्या करेंगे यार? हो सकता है ये चीज भी पॉसिबल है कि न्यूमेरिकल में हमें हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो क्या करेंगे? क्या मैग्निफिकेशन नहीं निकल सकता? बिल्कुल निकलेगा. कैसे? आपको न्यूमेरिकल में इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जरूर दे रखा होगा. सो another formula of magnification is it is the ratio of image distance to the object distance. Here is it. Okay, magnification, height of image to the height of object. Another, it is the ratio of image distance to the object distance. V stands for the image distance and U stands for the object distance. Okay students. Next, अब students हम उस स्टेज पर आ चुके हैं जहां हमें न्यूमेरिकल को कवर करना है. So our first numerical is, हमारा first numerical statement है आपके पास. Okay, a convex lens. Which type of lens it is? Convex lens. Convex lens is a converging lens. Okay, हम सभी जानते हैं convex lens कैसा है? Converging lens. कैसा फोकस होता है convex lens का? Real focus हमारे पास होता है हमारे convex lens का. Forms are
स्टूडेंट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ये हमें बनाकर दे रहा है ऑफ अ निडल, किसकी, निडल की। यहाँ पर निडल हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, निडल इज अ ऑब्जेक्ट, निडल हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, 50 सेंटीमीटर दूरी पर ये हमें निडल की इमेज बनाकर दे रहा है। वेयर इज द निडल प्लेस्ड, आप निडल को कहाँ प्लेस करेंगे, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को आप कहाँ प्लेस करेंगे, यू इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के सामने, दैट मीन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कन्वेक्स लेंस। इफ द लेंस इज pay a little bit more attention toward this line, if the image is equal to the size of object, जो इमेज है ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बने, इमेज है ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बने। किस केस में ऐसी इमेज बनती है, जब हम हमारे ऑब्जेक्ट को डबल फोकस पर प्लेस करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसकी इमेज भी हमें डबल फोकस पर ही मिलती है। आई रिपीट, जब हम हमारे ऑब्जेक्ट को डबल फोकस पर प्लेस करते हैं उसकी इमेज भी हमें डबल फोकस पर ही मिलती है। एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से डबल फोकस का है, एग्जैक्टली स्टूडेंट्स उतना ही डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड में डबल फोकस का रहेगा। दैट मीन्स u is equal to v in that case. Okay, this is the key term. इस न्यूमेरिकल के लिए की टर्म हमारा यही है, क्या है, u is equal to v। u कितना है, -50 सेंटीमीटर। माइनस कहाँ से आया, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, चाहे आप मिरर के बारे में बात कर रहे हो स्टूडेंट्स, चाहे आप लेंसेज के बारे में बात कर रहे हैं, u हमेशा ही क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। यहाँ से u किसके इक्वल है, u is equal to v, सो v भी कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा हो जाएगा। बट एट दैट टाइम v शुड बी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस में v क्या होता है, पॉजिटिव। किस केस में, जब हम इमेज हमारी रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो आपको निकालना क्या है, आपको f निकालना है, दैट मीन्स आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है एंड ऑल्सो फाइंड द पावर। क्या चीज निकालनी है, आपको पावर निकालनी है। अगर आप फोकल लेंथ निकाल लेते हैं तो स्टूडेंट्स पावर निकालना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो फर्स्टली हम चलते हैं, जो हमें फर्स्ट चीज निकाली दैट इज फोकल लेंथ। कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग लेंस फार्मूला। किसका यूज करते, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला 1/v minus 1/u is equal to 1/f. This is our lens formula. 1/v minus 1/u is equal to 1/f. Put the values. 1/v 50 minus 1/u minus 50 is equal to 1/f. Minus minus plus, so 1/50 plus 1/50 is equal to 1/f. Okay students, 1/50 plus 1/50 is equal to LCM. Now you took the LCM. Okay, 50, 1 plus 1 that is 2/50, 1/25. Now the focal length is 25 centimeter. Focal length students यहाँ से कितना है, 25 centimeter plus. Okay, क्योंकि कन्वेक्स लेंस के केस में हमारी फोकल लेंथ कैसी रहती है, प्लस रहती है। अब आपने फोकल लेंथ निकाल ली है विद द हेल्प ऑफ लेंस फार्मूला। ओके, अब नेक्स्ट इज आपको क्या निकालनी है, पावर। फॉर्मूला ऑफ पावर इज इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, फोकल लेंथ, बट फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर एंड द SI यूनिट ऑफ द पावर ऑफ a lens is डायोप्टर। क्या रहती है, डायोप्टर, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल D। पुट कर लीजिए 1/25 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर को मीटर में। कैसे करेंगे, आपको डिवाइड बाय 100, 25 4 जा, सो द पावर ऑफ लेंस इज +4 डायोप्टर। दिस इज आवर रिजल्ट। स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हो जाता है, रिजल्ट। अगर किसी भी लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो स्टूडेंट्स उस लेंस की पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव। क्यों होगी, बिकॉज power of a lens is reciprocal of focal length. So in that question power of a lens is +4 diopter. I hope students ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अभी हम और भी ज्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर कराने के लिए। So you don't worry,
Okay, so let's proceed with our numerical number second. The statement of numerical number second is find the power of a lens. क्या निकालनी है स्टूडेंट्स? आपको पावर निकालनी है. क्या निकालना है? पावर. आपको पता है पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर. फोकल लेंथ किसके अंदर होनी चाहिए स्टूडेंट्स? मीटर के अंदर होनी चाहिए. पावर को इन शॉर्ट रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल कैपिटल में 1 बाय एफ. कौन सा लेंस है स्टूडेंट्स? कनकेव लेंस है. कनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस. अनदर नेम ऑफ कनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस. कनकेव लेंस का दूसरा नेम क्या है स्टूडेंट्स? डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ आपको कितना गिवन है? 2 मीटर. यहाँ पर लिटिल बिट अटेंशन आपको पे करने की रिक्वायरमेंट है बिकॉज फोकल लेंथ इज ऑलरेडी इन मीटर. फोकल लेंथ स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में आपको ऑलरेडी मीटर में दे रखी है, तो अब यहाँ पर आपको कुछ भी कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. सिंपली वैल्यू पुट करो 1 बाय 2. बट स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ कनकेव लेंस की कैसी होती है? नेगेटिव. कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या रहती है? नेगेटिव. तो यहाँ आपको क्या लगाना पड़ेगा? -2 लगाना पड़ेगा. ओके, सो -1 by 2 diopter, or we can also say that -0.5 diopter is the power of our lens. Students यहाँ पर आप एक बार कंपैरिजन कीजिए पावर ऑफ ए लेंस और चैप्टर जो हमने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस किया, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी. उस इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी स्टूडेंट्स हमने पावर स्टडी किया था. वो पावर और यहाँ पर जो हम पावर डिस्कस कर रहे हैं, these two are totally different. ये दोनों टोटली डिफरेंट है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है. जब भी आप लेंसेज में बात करेंगे वहाँ स्पेसिफिक होगा पावर ऑफ ए लेंस. ओके स्टूडेंट्स, सो द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज डायोप्टर. ओके, सो लेट्स मूव विद द न्यूमेरिकल नंबर थर्ड. The statement of numerical number third is, I hope students you enjoy the lecture. Numericals आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे. The statement of numerical number third is a concave lens. Again कैसा लेंस है? concave lens. अभी प्रीवियस जो न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया था वहाँ हमने देखा था concave lens is a diverging lens. A concave lens has a focal length of 15 cm. कंकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमें ऑलरेडी गिवन है. कितना? 15 सेंटीमीटर. और कंकेव लेंथ की फोकल लेंथ कैसी होती है स्टूडेंट्स? नेगेटिव होती है. एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड? कीप दैट इन योर माइंड. एट व्हाट डिस्टेंस, कितनी दूरी पर शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, लेंस से ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करेंगे सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज. That means you अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? you आपको कैलकुलेट करना है. और जो आपकी इमेज बनी है वो कहाँ बनी है? 10 सेंटीमीटर पर बनी है. कहाँ बनी है? 10 सेंटीमीटर पर बनी है. Also find the magnification produced by the lens. इस क्वेश्चन में अब आपको 2 चीजें निकालनी, 2 टर्म्स निकालनी. फर्स्ट वन इज द u, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, और जो नेक्स्ट टर्म निकालनी है दैट इज मैग्निफिकेशन आपको निकालनी. साइन कन्वेंशन कौन सा लेंस है? कंकेव लेंस. कंकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है? कंकेव लेंस स्टूडेंट्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है. कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होती है स्टूडेंट्स? प्लेस की हुई होती है. तो u कैसा होगा? u आपको पता है क्या होगा? नेगेटिव. और v कैसा होगा? अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन v कैसा होगा? देखिए ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की है. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये हमने हमारा कंकेव लेंस प्लेस कर दिया है. दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर. आप कहाँ मूव कर रहे हैं? राइट टू लेफ्ट. कहाँ मूव कर रहे हैं? राइट टू लेफ्ट. और जब भी आप राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं साइन कन्वेंशन क्या रहता है स्टूडेंट्स? साइन कन्वेंशन आपका नेगेटिव रहता है. तो v क्या होगा स्टूडेंट्स? आपका v शुड बी नेगेटिव. अब लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए. व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. दैट इज लेंस फॉर्मूला. ये क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? ये हमारे पास लेंस फॉर्मूला होता है. नाउ सिंपली पुट द वैल्यूज. ओके,
1/10 1 by u आपको कैलकुलेट करना है एंड फोकल लेंथ इज -15. ओके, सिंप्लीफाई करेंगे -1/10 -1 by u is equal to -1/15. ओके, उस तरफ लेके जाएंगे -1 by u is equal to -1/15 plus 1/10. अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एलसीएम लेना. 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा 30. 15 2 जा 10 3 जा 15 2 जा 10 3 जा -1 by u is equal to 1/30. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u आपको कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स, u माइनस का 30. और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन u आपका कैसा होना चाहिए, u आपका नेगेटिव होना चाहिए. दैट मींस आप अपना न्यूमेरिकल बिल्कुल सही कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, ये जितने भी आपने न्यूमेरिकल्स की है लेंसेज एंड मिरर्स के बारे में, यहाँ पर एक ही फायदा है आपका, जब आप न्यूमेरिकल निकालेंगे आपको खुद पता होगा कि आपका न्यूमेरिकल सही निकला है या रॉन्ग निकला है, गलत निकला है. ओके, तो एक चीज हमने निकाली, दैट इज नेक्स्ट चीज क्या निकाली, मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अब न्यूमेरिकल में हमने स्टेटमेंट में कहीं भी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जिक्र तो किया ही नहीं, तो किस चीज का यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन. इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस विद अ पॉजिटिव सिंबल. ओके, सो स्टूडेंट्स बी हमारा यहाँ से कितना आया -10, यू कितना है माइनस का 30, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. ओके, सो मैग्निफिकेशन इज 1/3 विद अ पॉजिटिव सिंबल. और कनकेव लेंस में स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन कैसी होती है, प्लस होती है. कैसी होती है स्टूडेंट्स, प्लस होती है. आई होप स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा. फिर भी हम आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे. फर्दर और भी न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे. द स्टेटमेंट ऑफ फोर्थ न्यूमेरिकल इज, ओके, a 2 centimeter tall object. Sorry. Okay, a 2 centimeter tall object. Tall, that means आपको क्या दे दिया, height of object, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे h को. That is height of object कितना है 2 centimeter. एंड height of object हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है. क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से अबव ऊपर प्लेस करते हैं, और जो चीज आप प्रिंसिपल एक्सिस से अबव प्लेस करेंगे स्टूडेंट्स वो क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है. इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव लेंस. अगेन द न्यूमेरिकल कम्स फ्रॉम द सेक्शन ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ. कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ स्टूडेंट्स आपको कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर. और कनकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है स्टूडेंट्स, नेगेटिव फोकल लेंथ होती है. द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंसेज, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से दैट इज 15, दैट मींस u, एंड u इज ऑलवेज नेगेटिव. फाइंड द नेचर. क्या चीज आपको निकालनी है, नेचर. नेचर मींस, नेचर का मतलब क्या होता है, काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नेचर. नेचर स्टूडेंट्स आपको ये बताएगा कि जो इमेज है वो आपकी रियल बनी है या वर्चुअल. पोजीशन, कहाँ आपकी इमेज बनी है, कितनी दूरी पर आपकी इमेज बनी है, मतलब आपको निकालना क्या है, v, एंड द साइज ऑफ द इमेज, दैट मींस आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है. ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, और आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन भी निकालना है. अब आपके सामने है क्या चीजें आपको गिवन है और क्या चीजें आपको कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स. सो u है, f है, यहाँ से आप v इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंस फार्मूला. एंड लेंस फार्मूला इज 1/v minus 1/u is equal to 1/f.